Good morning, dear students. This is the second part of poverty as a challenge. In the previous lecture, we had discussed about the meaning of poverty. What is the basic definition of poverty and the broader definition given by the social scientists. And we had also discussed about the indicator of poverty, that is social exclusion and vulnerability. Now today we will discuss about how to measure poverty. We are talking about poverty, we are talking about poor. तो आप who are poor? कौन poor है, कौन rich है? It is not written on their face. तो measurement के लिए, identify करने के लिए there should be some method, there should be some process by which, by that method we can say yes, these people are poor people, these are not poor people. So poor people, they need some support. So let us see how to measure the poverty. To measure poverty, we use all over the world. People use poverty line, like number line. And this poverty line, it varies from time to time. It varies from place to place and from country to country. ये poverty line है क्या? Similarly, like your number line in maths, 0 राइट हैंड साइड में आप जाएंगे पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे नेगेटिव नंबर्स. सिमिलरली पॉवर्टी लाइन के ऊपर जिनका सिचुएशन है, दे आर नॉट पुअर. पॉवर्टी लाइन के नीचे, the people those who are below the poverty line, they are considered as poor, means their situation is not good, and it is obviously it is an imaginary line. ऐसा कोई लाइन तो होता नहीं है. So we use poverty line to assess the situation of a people, whether they are suffering from poverty or not. If the people, they are above, if the condition of the people is above the poverty line, it is considered that they are not poor. If the people, they lie below the poverty line, means they are poor people. So how to measure poverty line? There are two methods to measure poverty line. One is consumption method, another is income method. Consumption method, it is also known as calorie method. Let us see what is written here about poverty line. Poverty line क्या है? Poverty line is an imaginary line used by any country to determine its poverty. It is considered appropriate by a country according to its existing social norms. It varies from time to time, place to place and country to country. The most common method of determining poverty is income and consumption levels. So let us discuss the various or the two methods of measuring poverty line. In India, we use calorie method or consumption method. Another is income method and income method. Calorie method क्या है and consumption method? To run the activities of body, काम करने के लिए, while I am talking, while I am walking, while I am doing some work, we need some calorie. हमें कैलोरी की ज़रूरत है. कैलोरी इज़ लाइक अ फ्यूल फॉर योर बॉडी. ऐसे कार चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, तो बॉडी को रन करने के लिए, एक्टिव रहने के लिए वी नीड कैलोरीज. और ये कैलोरी हमें कहाँ से मिलते हैं? वी गेट कैलोरीज फ्रॉम द फूड. जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, फ्रॉम दैट फूड वी गेट कैलोरीज टू डू वेरियस एक्टिविटीज. ओके, सो हाउ मच कैलोरी should a person require? On the basis of that calorie requirement, एक आदमी को, नॉर्मल आदमी को कितना फूड खाना चाहिए ताकि उसकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए.
अगर कोई अपना कैलोरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है, मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल कर सकता है, मीन्स ही इज़ नॉट पुअर। जो अपना कैलोरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकता है बिकॉज हिज अर्निंग इज़ वेरी लो, नॉट जस्ट फॉर एनी अदर पर्पसेस, जो नहीं कर सकता है कैलोरी रिक्वायरमेंट फुलफिल, दे आर पुअर। मीन्स कैलोरी रिक्वायरमेंट के इन इंडिया, इन फर्स्ट हियर ऑल्सो कैलोरी मेथड में भी रूरल एंड अर्बन एरिया में अलग अलग कैलोरी रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रूरल एरिया। इन रूरल एरिया, इफ a person gets 2400 calories per day, then he is not a poor person. रूरल एरिया में किसी आदमी ने अगर 2400 कैलोरीज पर डे किसी को मिल रहा है, मीन्स ही इज़ नॉट पुअर। किसी को अगर 2400 कैलोरीज के नीचे कैलोरी मिल रहा है इन द रूरल एरिया, दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज अ पुअर। मीन्स 2400 यू कैन से इज जीरो पॉइंट में है। इससे अगर ज़्यादा है he or she is not poor, इससे अगर कम है he or she is poor. Similarly, in urban areas, calorie requirement is decided about 2100 calories, 2100 calories. Means in urban areas, if a person he is getting 2100 calories per day, that person is not a poor person. But if he is getting less than 2100 calories per day in urban areas, means that person is a poor person. Then इसके बाद आता है income method. Income means it is directly related to the income of that person. अब income method में क्या है, इसमें भी रूरल एंड अर्बन एरियाज के लिए अलग अलग नंबर है। In the rural area, if a person he is earning rupees 816 per month, one person per month earning rupees 816, he is not poor. Below 816 per month per person in rural area, that person is poor. You have to keep in mind 3-4 words. These are very important. Rural, per month, per person. Similarly, in urban areas, if a person is earning rupees 1000 or above per month, he is not poor. But if he is earning less than 1000 rupees per month, then he is considered as a poor. Have you noticed something that calorie requirement में rural and urban areas के calorie requirement different है? Although ये जो calorie requirement है, it also depends on age, then gender के ऊपर भी depend करते हैं. Still this is on an average. अगर हम देखेंगे तो rural areas में calorie requirement ज़्यादा दिखा रहा है as compared to the urban areas. What is the reason behind it? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि रूरल एरियाज में people they are doing more physical work as compared to the urban areas. जितना ज़्यादा फिजिकल वर्क होता है, कैलोरी रिक्वायरमेंट भी उसके साथ इंक्रीज हो जाती है। रूरल एरियाज में लोग ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं। कहीं भी जाना हो तो बाय वॉकिंग या साइकिलिंग जाते हैं, और अर्बन एरियाज में स्कूटी उठाया, बाइक उठाए, फिर कैलोरी रिक्वायरमेंट इसलिए कम है। और इनकम अगर आप देखोगे तो वो रूरल एरियाज के लिए कम है, अर्बन एरियाज के लिए ज़्यादा है, मोर है। वाई? इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि रूरल एरियाज में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग is less than the urban areas. रूरल एरियाज में
जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसका कॉस्ट कम होता है एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज। अगर वेजिटेबल्स अर्बन एरियाज में 60 रुपीज़ पर किलो है तो सेम वेजिटेबल आपको रूरल एरियाज में 40-30 रुपीज़ किलो भी मिल जाते हैं। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो रूरल एरियाज में लेस है एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज। दैट इज़ वाई देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रूरल एंड अर्बन एरियाज इन द केस ऑफ बोथ द मेथड। कैलोरी मेथड में भी एक रीज़न है और इनकम मेथड में भी और एक रीज़न है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। कैलोरी मेथड में यही डिफरेंस है कि रूरल एरियाज में फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं लोग, और इनकम मेथड का डिफरेंस क्या है, रीज़न क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई इन अर्बन एरियाज एज कंपेयर टू रूरल एरियाज में। ओके, दिस इज द मेथड हाउ टू एस्टिमेट द पॉवर्टी। पॉवर्टी को हम दो मेथड से एस्टिमेट करते हैं, कैलोरी मेथड और कंजम्पशन मेथड, अनदर इज इनकम मेथड। लेट अस सी व्हाट इज नेक्स्ट। तो ये जो कैलोरी मेथड है जिसमें 2400 कैलोरीज चाहिए रूरल लोगों के लिए, 2100 कैलोरी चाहिए अर्बन लोगों के लिए, 816 रुपीज़ has been fixed for the rural areas, 1000 rupees for the urban area. Who has done this? ये कौन करते हैं? Which organization, which agencies is doing this? ये जो काम करते हैं estimation of poverty line, it is done by the National Sample Survey Organization, NSSO. क्योंकि ये poverty estimation is a marathon work, ये बहुत बड़ा काम है, एंड इट इज़ डन बाय द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1950 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 3 years आफ्टर इंडिपेंडेंस। एंड दिस इज ऑर्गेनाइजेशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, और ये भी आफ्टर 5 years इंटरवल में पॉवर्टी लाइन को दोबारा एस्टिमेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि 5 years के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं सोसाइटी में, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग कॉस्ट में भी चेंजेस होते हैं, इसलिए देन इन्फ्लेशन भी हो जाता है। इन्फ्लेशन मीन्स राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, तो इन्फ्लेशन भी होता है, देन गुड्स के प्राइस में भी चेंजेस आते हैं, इसलिए आफ्टर 5 years ये जो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, दे सर्वे अगेन एंड दे एस्टिमेट अ न्यू पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन इधर बाय कंजम्पशन मेथड और बाय इनकम मेथड में वो जो नंबर है वो वेरी करता है, चेंज होता है आफ्टर 5 years। चेंज हो भी सकता है, नहीं भी, बट दे कंडक्ट अ सर्वे आफ्टर 5 years कि चेंज करना ज़रूरी है कि नहीं है। और इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया कंडक्टिंग रेगुलर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। सोशियो इकोनॉमिक्स मीन्स ये पॉवर्टी लाइन छोड़ के भी आगे भी आप देखेंगे बहुत सारा इकोनॉमिक सर्वे में भी नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, वर्क करते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है, बिफोर डिस्कसिंग अबाउट पॉवर्टी लाइन, व्हाट आई टोल्ड यू, पॉवर्टी लाइन वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, क्योंकि 5 years के बाद फिर सर्वे होनी है और चेंज होता है, कंट्री टू कंट्री भी वेरी करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, जैसे कि करेंसी के टाइम में हमने देखा था US डॉलर इज अ स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड करेंसी है। सिमिलरली अगर वर्ल्ड पॉवर्टी को लेके हम डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड पॉवर्टी को, ऐसा तो कोई भी कंट्री नहीं है ना जिसमें पॉवर्टी नहीं है, सभी कंट्रीज में हाँ लेवल अलग हो सकता है, परसेंटेज अलग हो सकता है, ज़ीरो पॉवर्टी पॉसिबल नहीं है। तो कंट्रीज़ को हम, कंट्री की पॉवर्टी को हम कैसे कंपेयर करेंगे,
अगर सबका यूनिट डिफरेंट है तो। दैट इज वाई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वर्ल्ड बैंक ने एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड मेथड दिया है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी लाइन क्या होनी चाहिए? पॉवर्टी लाइन ये होनी चाहिए, इफ अ पर्सन इज अर्निंग $1 पर डे, $1 के इक्विवेलेंट मीन्स $1 इज इक्वल टू हाउ मच? रुपीज। रुपीज में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कभी से वो ये भी फ्लक्चुएट होता है, 70, 72, 74, 75 ये भी हो सकता है। तो $1 के इक्विवेलेंट कोई भी करेंसी, जिस कंट्री की जो भी करेंसी है, $1 के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अगर अ पर्सन इज अर्निंग, द इनकम ऑफ अ पर्सन इज इक्विवेलेंट टू $1 पर डे अगर होता है, दैट पर्सन इज नॉट अ पुअर पर्सन। इफ इज अर्निंग इज बिलो the currency below $1 per day, then that person is a poor person and he is suffering from poverty. His or her situation will be considered as a poverty. He is considered as a poor. So World Bank के according poverty line है $1 per day per person. इसके नीचे अगर कोई है तो they are considered as poor. Okay. Now next is the poverty trend. Poverty trend क्या है? अगर आप देखोगे इंडिया में poverty, ये रूरल अर्बन टोटल फ्रॉम 1993-94 टू 2011-12 ये नंबर ऑफ पुअर अगर आप देखोगे, कंपेयर करोगे, चाहे रूरल पॉवर्टी रेशियो हो, चाहे अर्बन पॉवर्टी रेशियो हो, चाहे टोटल पॉवर्टी रेशियो, सभी में डिक्लाइन हुआ है, डिक्रीज हुआ है। टोटल में 45% से 22% हो गया है। और नंबर ऑफ पुअर भी अगर आप कंसिडर करोगे रूरल, अर्बन और टोटल में, इसमें भी डिक्रीज हुआ है। 1993-94 में 329 से अभी 217 हो गया है। अर्बन में 75 से 53 हो गया है। टोटल में 404 से 270 हो गए। मीन्स सभी में पॉवर्टी रेशियो में भी डिक्लाइन हुआ है, नंबर ऑफ पुअर में भी डिक्लाइन हुआ है। अगर ये जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है पॉवर्टी में, इफ इट कंटिन्यूज, अगर ऐसा ही डिक्लाइन होता गया तो विद इन फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में पॉवर्टी लाइन में रिड्यूस 20% इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में डिक्रीज हो जाएगी इंडिया में। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया हियर। अभी इंडिया में पॉवर्टी बहुत हाई है, विच आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर, एवरी 4th person इज पुअर। अगर 4 आदमी खड़े हैं तो 4th आदमी पुअर पीपल है। द पॉवर्टी लेवल इज वेरी हाई इन इंडिया, बट द ट्रेंड इज गुड। रेशियो में भी, पॉवर्टी रेशियो में भी डिक्लाइन है और नंबर ऑफ पुअर में भी डिक्लाइन है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो विद इन फ्यू ईयर्स पॉवर्टी लाइन भी 20% रिड्यूस हो जाएगा। आई थिंक दिस इज what in this portion, and hope you got this portion. If you have any problem, call me. We can discuss in the live classes also. So thank you and have a good day.